آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم دین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو صحیح سمے پر مل جائے۔ ذکر خدا اور امام احمد رضا، مصنف مولانا تطہیر احمد رضوی بریلوی، حصہ 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی میں توحید کے جلوے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کہ لوگ کہیں خدا تعالیٰ کو نہ بھول جائیں، اس کے ذکر و شکر سے غافل نہ ہو جائیں، اس کی یاد ان کے دل سے نہ مٹ جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر جائز کام اور ہر نیک بات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کا نام شامل رہے اور ہر اچھے کام کی نسبت اس کی طرف کی جائے۔ میں یہاں اپنی اس بات کی تائید میں ان کے لکھے ہوئے چند فتوے نقل کرتا ہوں۔ 1429 ہجری میں قصبہ نیوریا ضلع پیلی بھیت کے ساکن منشی اکبر حسین مرحوم نے سوال لکھ کر بھیجا، کیا فرماتے ہیں علماء دین کی عورت کو بانجھ کرنا کس قدر گناہ ہے اور اس گناہ کی معافی ہے یا نہیں؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جواب میں تحریر فرماتے ہیں، بانجھ نہ کرنا اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے، بشر کی طاقت نہیں۔ اس ثبوت میں قرآن شریف کی آیت کریمہ کا ٹکڑا لکھتے ہیں جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بانجھ کرے، پارہ 25 رکوع 6۔ پھر جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، ہاں ایسی دوا کا استعمال جس سے حمل نہ ہونے پائے اگر کسی ضرورت شدیدہ قابل قبول شرط کے سبب ہے حرج نہیں، ورنہ سخت شنی و معیوب ہے، شرعاً ایسا قصد ناجائز و حرام ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 208۔ سائل یعنی سوال پوچھنے والے نے یہ پوچھ لیا تھا کہ عورت کو بانجھ کرنا کس قدر گناہ ہے۔ امام احمد رضا کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ بغیر خدا تعالیٰ کا نام لیے کسی اور کی طرف بانجھ کرنے کی نسبت کر دی جائے، حالانکہ مجازی طور پر یعنی یہ عقیدہ رکھ کر کہ جو کوئی کسی کو جو بھی نفع یا نقصان پہنچاتا ہے وہ سب خدا تعالیٰ کی دین ہے، اس کی توفیق و تائید سے ہوتا ہے، اس قسم کے کاموں کی نسبت غیر خدا کی طرف کر سکتے ہیں اور اس قسم کے جملے بولے جا سکتے ہیں، مثلا ڈاکٹر نے مریض کو صحیح کر دیا، فلاں شخص نے فقیروں کو دے کر مالدار کر دیا، بارش نے کھیتی اور زمین کو ہرا بھرا کر دیا۔ یہ سب بولنا جائز ہے جبکہ یہ سمجھے کہ یہ سب خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عطا سے ہے، لیکن جن کے دل و دماغ ہر وقت اللہ جل شانہ کے جلووں سے آباد ہیں وہ ہر وقت اس کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں۔ کائنات کی ہر شے میں ہر وقت انہیں وہ اور اس کی قدرت و حکمت نظر آتی ہے، ان کے درجے اور مرتبے ہی کچھ اور ہیں۔ انہیں اس وقت تک مزہ نہیں آتا جب تک ہر بات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو جائے، ان کے دل کو خوشی تبھی ہوتی ہے جبکہ ہر جائز کام کی نسبت بندوں کی طرف کی جائے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کی یاد دلا کر کی جائے، یعنی یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے فلاں ڈاکٹر حکیم یا دوا کے ذریعے مجھ کو شفا عطا فرمائی، خدا کی قدرت دیکھو کہ بارش سے کھیتی کیسی ہری بھری ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کو اتنا نوازا ہے کہ اس نے دے دے کر فقیروں کو مالدار بنا دیا۔ یہ سب ان کی بولیاں ہیں جو ایک آن کے لیے بھی خدا تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں۔ یقیناً امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی میں سے تھے۔ انہیں یہ اچھا نہ لگا کہ سائل نے بانجھ کرنے کی نسبت انسان کی طرف کیسے کر دی۔ اس کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ ایسی دوا کا استعمال جس سے حمل نہ ٹھہرنے پائے جائز ہے کہ ناجائز۔ حالانکہ سائل منشی اکبر حسین مرحوم سچے پکے پڑھے لکھے مسلمان آدمی تھے، ان کا عقیدہ یہی تھا کہ بغیر خدا تعالیٰ کی مرضی کے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہی عقیدہ رکھ کر انہوں نے عورت کو بانجھ کرنے کی نسبت انسان کی طرف کر دی اور یہ پوچھ لیا کہ عورت کو بانجھ کرنا کس قدر گناہ ہے، یعنی جو انسان ایسا کرے وہ کتنا بڑا گنہگار ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب سے پہلے انہیں خدا تعالیٰ کی یاد دلائی اور پہلے یہ لکھا کہ بانجھ کرنا اللہ کا کام ہے، اور سائل پر کوئی فتویٰ بھی نہیں لگایا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسلمان ہے اور وہ سب کچھ اللہ ہی کی عطا سے مانتا ہے۔ ایک جگہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے ساتھ قلب دل کی محافظت اعظم فرائض سے ہے۔ الملفوظ حصہ اول صفحہ 60، یعنی ہر حال میں، ہر وقت، ہر بات میں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں بسی رہنی ہر ضروری سے زیادہ ضروری ہے۔ منشی اکبر حسین مرحوم ساکن قصبہ نیوریا ضلع پیلی بھیت یوپی کا پوچھا ہوا یہ سوال اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خود اپنے ہاتھ اور قلم کا لکھا ہوا یہ جواب میرے پاس یعنی مصنف مولانا تطہیر احمد بریلوی کے پاس محفوظ ہے۔ یہ فتوی کی اصل کاپی خود
उन्होंने मुंशी जी मरहूम से न्यूरिया में उनके घर पर मुलाकात करके हासिल की थी। यह 1985 ईस्वी की बात है। मरहूम की उम्र तकरीबन 90 साल की थी। वह उस वक्त बिस्तरे अलालत पर थे। थोड़े ही दिनों के बाद दुनिया से तशरीफ ले गए। खुदा ताला मगफिरत फरमाए। माशाअल्लाह पढ़े लिखे, दीनदार, इल्म दोस्त, उलमा नवाज आदमी थे। इस मौके पर मुसन्निफ अपने तमाम सुन्नी मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता है कि वह जब भी किसी जायज काम, किसी हुस्न व खूबी, कमाल व सलाहियत, ताकत व हौसले और हिम्मत की निस्बत किसी भी शख्स या शय की तरफ करे तो इसमें अल्लाह ताला का जिक्र जरूर लाएं। मसलन बड़ा शख्स को अल्लाह ताला ने कितनी ताकत व हिम्मत दी है, अल्लाह ताला ने चांद को कितनी खूबसूरती दी है, गुलाब के फूल में कैसी खुशबू रखी है, पहाड़ को कितनी बुलंदी अता फरमाई है, यह दरख्त खुदा ताला की कुदरत से कितना तनावुर, हरा भरा और खूबसूरत है। बल्कि हजरत अंबिया किराम व बुजुर्गान दीन के कमालात व इख्तियारात व खुसूसियात का जिक्र किया जाए तो उसको खुदा ताला का नाम, उसकी अता व बख्शिश बताकर किया जाए। मसलन बजाय यह कहने की हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गैब जानते थे, यह कहना बेहतर है कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म अता फरमाया है। या बुजुर्गान दीन लोगों की फरियादें सुनते हैं, उनकी मुरादें पूरी फरमाते हैं। इसके बजाय यूं कहें कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब व मुकद्दस बंदों को फरियाद रसी और हाजत बराबरी की ताकत अता फरमाई है, यह ज्यादा अच्छा है। हालांकि मुसलमान जबान से न कहे लेकिन वह हर शख्स की हर खूबी और कमाल व सलाहियत को खुदा के दिए से ही समझता है, लेकिन फिर भी खुदा का नाम लेना, उसका जिक्र कर देना, उसकी याद दिला देना अच्छा ही अच्छा है, बल्कि हर अच्छे से अच्छा है। इस हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह का जिक्र किए बगैर ज्यादा बातचीत न करो। मिशकात सफा 198, यानी हर बात में अल्लाह ताला का नाम और उसका जिक्र लाओ। खुद इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की आदत थी, जिसकी बेशुमार मिसालें उनकी तहरीरों में देखी जा सकती है। उन्होंने अपनी एक किताब जिसमें यह साबित किया है कि लोगों के दिलों पर अल्लाह ताला के महबूब बंदों का कब्जा है, उसका नाम यह रखा फिक्ह शहनशाह व अन अल कलूब बैदल मजूब ब अताइल्लाह, यानी लफ्ज शहनशाह का मफहूम और यह कि बेशक महबूबाने खुदा का खुदा की अता से दिलों पर कब्जा है। किताब के इस नाम में बेअताइल्लाह का लफ्ज लिखकर उन्होंने यह याद दिला दिया कि यह जो कुछ है सब अल्लाह की अता से है। एक जगह वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ गैब जानने की निस्बत इन अल्फाज में फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल के देने से अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को कसीर व वाफिर गैबों का इल्म है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की अता से हबीब अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतने गैबों का इल्म है जिनका शुमार अल्लाह अज़्ज़ व जल ही जानता है। खालिसुल एतिकाद सफा 23 एक मकाम पर लिखते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने रोजे अजल से रोजे आखिर तक जो कुछ हुआ और जो कुछ होने वाला है एक एक जर्रे का तफसीली इल्म अपने हबीब अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। फतावा रिजविया जिल्द 15 सफा 74। खुलासा यह कि मखलूक में किसी के भी कमाल व मर्तबे, हुस्न व खूबी का जिक्र किया जाए तो खुदा ताला की कुदरत और उसकी देन और अता, फजल व करम बताकर किया जाना ही मुनासिब है। दरअसल बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुछ मखलूक खास कर अपने महबूब बंदों में से कुछ को ऐसे कमालात व खूबियां अता फरमाता है कि जिनको देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। इस मखलूक को मोहब्बत व अकीदत में इसके गिरविदा हो जाते हैं। कभी कभी वह इसके हैरान कुन कमालात देखकर जोश व जज्बात में बेकाबू हो जाते हैं। लेकिन एक मोमिन और मुसलमान की किसी भी मखलूक से कितनी ही मोहब्बत व अकीदत हो, कितना ही प्यार हो, लगाव हो, लेकिन इस मोहब्बत में अल्लाह ताला की याद रहना जरूरी है। जबान से इजहार मोहब्बत में भी और दिल व दिमाग की आशिकाना कैफियत में भी। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में शिर्क व बुत परस्ती जब भी फैली तो यह अक्सर अल्लाह ताला की हैरान कुन मखलूक खासकर महबूबाने खुदा की मोहब्बत व अकीदत में हद से बढ़ने के नतीजे में हुआ। लिहाजा एहतियात इसी में है कि जब भी जिस किसी के जो भी कमाल खूबी बयान किए जाए उनमें अल्लाह ताला का नाम जरूर लिया जाए। एक जबरदस्त सुन्नी आलिम हजरत मौलाना गुलाम रसूल सईदी फरमाते हैं, हर चंद की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अताए इलाही से इल्म गैब हासिल है, लेकिन मुतलकन ये नहीं कहना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि आप गैब पर मुतल्ला हैं या आप पर गैब जाहिर किया गया है या आपको इल्म गैब अता किया गया है।
क्योंकि जब मुतलकन इल्म गैब बोला जाए तो इससे मुतबादिर समझा हुआ इल्म जाती होता है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी तरह फरमाया है। शरह सही मुस्लिम जिल्द 1 सफ़ा 1160। इस बारे में इमाम अहमद रजा का एक और फतवा मुलाहिजा फरमाइए। साइल ने पूछा, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम मालिक बर्री हैं या बहरी, यानी खुशकी के मालिक हैं या समंदरों के? अब इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का जवाब मुलाहिजा फरमाइए। लिखते हैं, मालिक बहर बर व खुश्क व तर अल्लाह अज़्ज़ व जल है और उसकी अता से हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुजूर की नियाबत में खिज़र अलैहिस्सलाम के तसर्रुफात इख्तियारात खुशकी व दरिया दोनों में हैं। फतावा रिजविया जिल्द 26 सफ़ा 436। सुनिए और बार बार सुनिए साइल का सवाल और इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का जवाब, और देखिए उनका इस्लाम, उनका मजहब, उनका अकीदा, उनका दीन और उनकी तालीम, उनकी हिदायत और उनके इरशादात आप जितनी बार पढ़ेंगे और गौर करेंगे उतना ही लुत्फ और मजा आएगा, और मजे तो गौर करने वालों ही के लिए हैं। इमाम अहमद रजा को ये अच्छा नहीं मालूम हुआ कि मालिक का लफ्ज सीधे सीधे किसी पर बोल दिया जाए, बल्कि किसी की किसी चीज पर मिल्कियत व हुकूमत बताने के लिए पहले खुदा ताला का जिक्र किया जाए, उसकी जाती बेअता मिल्कियत व बादशाहत, हुकूमत व सल्तनत की याद दिलाई जाए, और तौहीद इलाही की तरफ से जरा सी गफलत व बेतवज्जुही न होने पाए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के तसर्रुफात व इख्तियारात बयान करने से पहले वह लिखते हैं, मालिक बहरोबर व खुशकोतर अल्लाह ताला है। यहाँ अहले ज़ौक़ के लिए यह भी लज्जत का सामान है और गौर फिक्र व दिमाग व ईमान वालों के लिए अजीब नुक्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए तो अल्लाह की अता यानी उसकी देन से लिखा, और खिज़र अलैहिस्सलाम के लिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नियाबत का लफ्ज इस्तेमाल किया, अता का नहीं। हालांकि मजाजी मालिक के लिए अता का लफ्ज बोलना राइज है, लेकिन चूंकि वह यहाँ अल्लाह ताला के लिए खास इस लफ्ज को लिख चुके तो एहतियातन उन्होंने खास इस मौके पर यह लफ्ज न लिखा ताकि किसी किस्म के शिर्क और साझेदारी का शायबा व शक भी न होने पाए, न लफ्जी में न माने में। एक मर्तबा बहुत थोड़ी मुद्दत में बहुत सारी किताबें तसनीफ फरमाई तो इस पर खुदा ताला का शुक्र इन अल्फाज में अदा किया, बहरहाल ये जो कुछ है मेरी कुदरत से वरा यानी बाहर है, और महज फजल मेरे रब करीम फिर मेरे नबी रऊफुर रहीम का जल्ल व आला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिर अरबी जबान में चंद हमदिया और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ के अल्फाज लिखे, जिनका तर्जमा ये है, और अल्लाह ही के लिए हमद है, शुक्रगुजारों की हमद और अल्लाह का दरूद उसकी मखलूक में सबसे बेहतर मोहम्मद और उनकी आल व असहाब पर, उनके फर्जंदों पर, उनके गिरोहों पर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर अल्लाह ताला का जिक्र और उससे ये दुआ फरमाते हैं, इलाही कबूल फरमा और तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए जो तमाम जहानों का मालिक है। बाकी है तुझे ए अल्लाह, तेरी हमद के साथ मैं गवाही देता हूँ तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तुझसे मगफिरत चाहता हूँ और तुझसे तौबा करता हूँ। फतावा रज़विया जिल्द 4 सफ़ा 319। इस मुख्तसर सी इबारत में कितनी जगह अल्लाह ताला का जिक्र है यह तो आपने सुन ही लिया, लेकिन यहाँ एक खास बात यह है कि उन्होंने अल्लाह रब्बे करीम के फजल के साथ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फजल का भी जिक्र फरमाया, तो बजाय लफ्ज और के फिर का लफ्ज लाए, यानी यह नहीं कहा फजल मेरे रब्बे करीम का और मेरे नबी रऊफुर रहीम का, बल्कि यूं कहा फजल मेरे रब्बे करीम का फिर मेरे नबी रऊफुर रहीम का। यह भी हदीस पाक से उनकी मोहब्बत का नतीजा है। एक हदीस में है, यह न कहो अल्लाह चाहे और फला चाहे, यह कहो अल्लाह चाहे फिर फला चाहे। मिशकात सफ़ा 408 बाबुल असामी। हालांकि अगर कोई यह कहे कि अल्लाह चाहे और उसका रसूल और उसका अकीदा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियार का मालात सब अल्लाह ताला की देन है, तो यह शिर्क नहीं, लेकिन फिर भी हदीस पाक में बजाय बीच में लफ्ज और लाने के फिर लाने का हुक्म हुआ, क्योंकि उर्दू में और अरबी में वाव सिर्फ शिरकत के लिए आता है, जबकि फिर इसके साथ साथ ताखीर और दूरी और फर्क व फासले का पता देता है। लिहाजा किसी को यह वहम न हो जाए कि माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के शरीक व साझी हैं और कायनात का निजाम दोनों मिलकर चला रहे हैं, बजाय और के फिर लाने का हुक्म दिया। हदीस पाक पर अमल फरमाते हुए उन्होंने अल्लाह ताला के साथ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फज़ल बताने के लिए लफ्ज फिर का इस्तेमाल किया और का नहीं, ताकि अल्लाह ताला के साथ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शरीक होने का वहम व गुमान
वह ख्याल भी किसी के दिल में आने न पाए। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल अमन वल आली में इस सब को बड़ी तफसील व तहकीक के साथ लिखा है। फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी से इसकी वजाहत फतावा फैजुर रसूल जिल्द 2 सफ़ा 620 पर देखी जा सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है मेरे बोलने में जो कुछ लग्जिशें और खताएं हुई उसे माफ़ फरमाए। हम तमाम उम्मत मुस्लिमा और मुस्लिमीन को सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दीन हक पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन।